مسلم بادشاہوں نے کیا ہے جو آپ نے آپ اورنگزیب کو کیا مانتے ہیں؟ ہم ہیرو مانتے ہیں. اچھا ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں. بالکل اللہ کا ولی مانتے ہیں. ہم نہیں مانتے, ہم اسے چور بس یہی جملہ آپ کا جو ہے نا. بالکل نہیں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو میں کافر ہو گیا؟ بالکل آپ کافر ہو گئے. بالکل آپ کافر ہو گئے. اچھا آپ نے ایک اللہ کے ولی کو چور و چکا کہہ دیا. نہیں بالکل نہیں. سیدنا کو مار دیا. کس کو؟ کس نے کہا؟ بوریوں کے آپ جو سیدہ تاریخیں لے کر کے آ رہے ہیں, سن لیجئے آپ میری بات, جو تاریخیں آپ لے کر میں دوسرے گیسٹ سے بات کہاں سے فساد نکال کر کے کیوں فساد ہمارے ملک میں پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ آپ پاکستان میں رہے وہاں دنگے کروائے آپ نے, آپ عراق میں رہے, آپ سعودی عرب میں رہے وہاں آپ نے دنگے کرائے, اور انشاءاللہ یہ آخری ایپیسوڈ ہوگا. یہ آخری ایپیسوڈ ہوگا فتح کے فتوے کا, اور اگر یہ آخری ایپیسوڈ نہیں ہوگا تو اس کا ذمہ دار زی نیوز خود ہوگا. میرے نبی کو ہندوستان نے کہا, سرکار نے کہا ہندوستان وہ ملک ہے جہاں سے وفا کی خوشبو آ رہی ہے. میرے نبی نے کہا. اور آپ کے یہ اس منحوس ٹائم کا میں سامنا کر رہا ہوں, منحوس ٹائم کا, جس کا مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا. ایسا آدمی جس پر ہندوستان کے کم سے کم 25 کروڑ مسلمان صبح شام لعنت بھیجتے ہوں, پر دیجئے نا بھائی, آپ چیخنے کی بات نہیں ہے. آپ اپنے گھر کی اصلاح تو نہیں کی ہے, جس کی بیٹی غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہی ہو, بغیر شادی کے بچے پیدا کر رہی ہو, آپ پر ہندوستان کا ایجنٹ ہونے کا فتویٰ لگایا. دیش دروہی جو آدمی اپنے دیش کا نہیں ہو سکتا وہ اپنے اسلام کا نہیں ہو سکتا. ہندوستانی آپ نے میری بیٹی کے بارے میں, آپ شرم کیجئے, اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتے. آپ ہندوستانی مسلمانوں کی اصلاح کرنے آئے ہیں. آپ ہندوستانی مسلمانوں کی اصلاح کرنے آئے ہیں. آپ پہ ہندوستان کا ہر مسلمان آپ کے چہرے پر تھوکتا ہے, آپ پر لعنت بھیجتا ہے. آپ اس قدر یہاں پر ہندو مسلمان کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہاں فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو کچھ نہیں دیا جائے گا. آپ جیسے منحوس شکل کو مسجد کے منبر پر موقع دیا جائے گا. آپ مذاق اڑا رہے ہیں یہاں پر. اسلامی تاریخ پر سیولائزیشن ہے. حضرت عمر فاروق کے بارے میں جو ہے کمنٹ کرنا, یہ کیا کہتے ہیں سیولائزیشن ہے؟ کیا کہتے ہیں خلفائے راشدین پر اٹیک کرنا سیولائزیشن ہے؟ میں ابھی آپ کہتا ہوں پروف کی بات آپ کر رہے ہیں, میں پروف کی بات کر رہا ہوں. وہ آدمی جو غلط یہاں پر حدیث پیش کرتا ہو, کیا یہ سیولائزیشن ہے کہ ہم اتنے لوگ ہم عالم بیٹھ کر کے ہم غلط ان کی حدیث سن لیں؟ حدیث ہے دیکھیں, بخاری شریف ایک روایت ہے, آپ نے پروف میں پیش کر رہا ہوں. بخاری شریف حدیث کی سب سے اوتھینٹک کتاب ہے بخاری شریف. مانتے ہیں آپ یا نہیں مانتے ہیں؟ اس میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے. ہاں کچھ ہے نا. میں ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. جو جھوٹ ہے وہ بتا رہے ہیں. بخاری شریف میں بھی جھوٹ ہے. اب ہے اس میں کئی حدیث کو بھی نہیں مانتے بھائی, بہت سے شیعہ نہیں مانتے. کس کو مانتے ہیں؟ حدیث کی کون سی کتاب کو مانتے ہیں؟ ارے جو قرآن کے اس میں ہے وہ ٹھیک ہے, جو نہیں ہے حدیث کو مانتے ہیں. ارے آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں کیا؟ میں نے نوکری نہیں کرنی. آپ کے بتا رہا ہوں آپ کو ان کی ضرورت کیا ہے اس لیے کیا ضرورت ہے. اسی لیے آپ محمود غزنوی کو لے کے آئے, قاسم کو لے کے آئے, اورنگزیب کو لے, کیا ضرورت پڑا؟ ابھی کیجئے نا, ابھی بتائیے کہ کس نے, کس بادشاہ نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کیا, وہ بتائیے نا. پھر کیوں بات آ رہی ہے کہ صاحب نکاح بتا دو, پھر کیوں بات آ رہی ہے؟ اب جہاں تک نہیں, بات ہماری نہیں ہے. المومنات دونوں کو ذکر کرتا ہے, عورتوں کا بھی پردہ نہیں ہوگا. اے مومن عورتوں, آپ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, شرم گاہوں کی حفاظت کرو. صاف لکھا ہے, مردوں کو بھی لکھا ہے, مردوں کو بھی لکھا ہے, عورتوں کو بھی لکھا ہے. یہ کہہ رہے ہیں صرف مردوں کو لکھا ہے, عورتوں کو نہیں لکھا ہے. جب آپ کو قرآن کی نالج نہیں, آپ کو قرآن کی نالج نہیں تو قرآن پر مت بولو نا. نہیں, چھیڑنے کی بات ہے. اگر آپ کے پاس صرف عورتوں پر پردہ ڈالتے ہیں, آپ کے پاس اگر آپ کے پاس ترک ہے, آپ کے پاس ترک ہے, قرآن کو اگر آپ جانتے ہیں بیان کر دیجیے. اگر آپ سے چھیڑنے کے لیے آئی ہے تو میں تو چھیڑنے کے لیے نہیں آیا. عورتوں کی فطرت صرف چھیڑنا ہی ہے کیا؟ عورتوں کی فطرت چھیڑنا ہی ہے کیا؟ الزام مردوں پر لگتے ہیں کہ مرد چھیڑتے ہیں. آپ کہہ رہی میں نے چھیڑ دیا آپ کو, آپ کہہ رہی میں نے چھیڑ دیا آپ کو, مگر آپ صرف عورتوں کو کالے کپڑوں میں الزام مرد کو دیتے ہیں. چھیڑنے کی بات نہیں. قرآن میں عورت کے لیے بھی لکھا ہے, دو لوگوں قرآن میں عورت کے لیے بھی لکھا ہے, دو لوگوں کے لیے بالکل لکھا ہے. لیکن جہاں آپ نے ایک چیز کو اور نکارا ہے, ایک چیز کو اور نکارا ہے مولانا صاحب, آپ نے ایک چیز کو اور نکار دیا کہ پردے کا کپڑا نہیں ہے. مولانا صاحب یہ بھی غلط کہہ دیا. دو لوگ قرآن میں صاف چادروں کا ذکر ہے. چادروں چادروں کا صاف نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. نہیں سر, ایسی بات مت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کا کیا مطلب ہے آپ مجھے بتا دیجیے. نہیں سر, وہ آپ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت نہیں ہے, چھاتیاں ہیں. نہیں, چھاتی نہیں, اور کیا بات, جھوٹ بول رہے ہیں. ارے بیوی میری بات, مسلمان ہو کے شرم کرو, شرم کرو. مسلمانوں کے کہہ شرم میں کیا برائی ہے, شرم میں کیا برائی ہے, شرم نہیں آتی آپ کو. ایک سیکنڈ, شرم نہیں آتی آپ کو. ہم مسلمان ہیں. دیکھیں میری بات, آپ چپ رہیے, آپ چپ رہیے. اگر آپ کو اسلام میں نہیں رہنا ہے تو مت رہیے.
मौलाना रशीदी को माफी मांगिए। ये है कि अगर आप किसी के भी मजहब के खिलाफ या किसी भी रिवायात और अक़दार के खिलाफ कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उसका जो सोल्यूशन है, जो तरीका है हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, वही अपनाना चाहिए। नहीं, मैं क्या इस्लाम के खिलाफ क्या बोल रहा हूँ, मुझे जरा बताइए। आप तो ये तो बात तय है कि आप सरासर इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। क्या इस्लाम के मुताबिक तो आप बोलते ही नहीं, क्योंकि आपका इस्लाम से कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा, आप सिर्फ जबान से मुसलमान कहें तो इससे मुसलमान नहीं हो जाता। अंबर, लेकिन मुसलमान के लिए सर ढकना भी है ना। अरे सर नहीं ढकेंगी औरत। जो रूल जहाँ से आए हैं, अल्लाह के यहाँ से आए हैं। नहीं, शरिया अल्लाह का क्या? बिल्कुल 13वीं सदी। नहीं, बिल्कुल गलत बात करें। 150 कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए जीने का हक है या नहीं, नहीं, अपने तौर पे जिए, लेकिन ये ना कहें कि ये इस्लाम है। उन्होंने ऐसा इस्लाम नहीं है। जिस तरह से हमने, मैं वही कह रहा हूँ, वो कह रहे सर झुका होना चाहिए, कहीं उसका जिक्र नहीं है कुरान में, और आप लोगों ने दुनिया भर में फैला दिया कि जो औरत बुर्का ना पहने वो सही मुसलमान नहीं है। बुर्के की कैद नहीं है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पर्दे की कैद है। पर्दा क्या पर्दा होना चाहिए। पर्दा तो लफ्ज है ही नहीं। औरत के माने खुद पर्दे कहने, वो पर्दे की रहने की चीज है। देखिए, सर खोलने की सर बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिखाइए कहा मुझे। अरे कुरान की कोई आयत दिखाइए, नबी की कोई हदीस दिखाइए। आप कहाँ से ले आए सर? आप सरासर इस्लाम के खिलाफ। कुरान में नहीं है। आप इस्लाम के भी खिलाफ हैं, मुसलमान के भी खिलाफ। अरे भैया ये जाने दो। इस तरह के इल्जाम मैं तो आज बड़ा हैरत में हूँ। मैं हैरत में हूँ कि इज्मा और कयास को, अगर आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि इज्मा कयास जो है शरीयत है, तो वो मुझे हैरत हो रही है। हैरत हो रही है, तुम स्टडी नहीं करके आते हो यार, इस्लाम का मुताला नहीं करते हो और बकवास करते हो। कैसे आप औरतों को डांट रहे हो? खवातीन को जो है, यहाँ तो लिख दिया, देखिए इस किताब में लिखा कि मैं एक बात बताऊं आपको, ये बट रही है, इसमें लिखा है चोरी बिजली के पानी से वजू कारण है। गलत है ना? हमारे लिए आखिर नहीं है किताब। अच्छा, तो मेरे लिए सुनिए, अगर मेरे लिए चोरी, मेरे लिए ये नहीं है। शरीयत क्या कहती है, मैं बताता हूँ आपको शरीयत क्या कहती है। सर अगर मुझे ट्रिपल तलाक पे बताइए, मेरी सुन लीजिए। मुस्लिम फैमिली कोई आलिम है उसको मानिए, तहकीक करेंगे, तहकीक करेंगे, आप तैयार भी नहीं है। तहकीक करने पे तो फतवे लग जाते हैं। नहीं, इसीलिए कुरान ने कहा है, हदीस ने कहा है ना, कि हर मुसलमान को इतना दीन सीखना फर्ज है जिससे हलाल और हराम हिंदुस्तान में समझ गए आप? सबसे आपसे मैं बात ही नहीं कर सकता। आप नहीं इस्लामी, आप दिमागी तौर से बेकार हैं। आप दिमागी तौर से बेकार हैं। आपका शोहर आपको कैसे झेल रहा है, मुझे अफसोस है उसके ऊपर। आपकी जिंदगी कैसे चल रही है? बिल्कुल मैं सही कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हैं? हम 5 आदमी इनको नहीं झेल पा रहे हैं। अकेला कहेंगे मोहम्मद इज अ फॉल्स प्रॉफिट, वो एज अ मुसलमान होकर के ये कह रहा है, इसे इसका इल्म नहीं है इसलिए वो कह रहा है। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, दोनों में फर्क है। कह सकता है तो देखिए वो अपने दीन की, अपने मजहब की वकालत कर सकता है। तो मजहब है ही नहीं उनका कोई। अगर उनका मजहब नहीं है तो किसी के ऊपर तोहमत लगाए तो फिर हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि भाई इस्लाम को ठेस पहुंचाएगा या मुसलमानों को ठेस पहुंचेगी तो उसके खिलाफ बात होगी। लेकिन फतवा किस पर लगेगा? फतवा उस पर लगेगा जो इस्लाम का मानने वाला हो, ना कि काफिरों पर या दूसरे मुल्हिदों पर या मुश्रिकों पर। हम उन पर फतवा नहीं लगा सकते। एक ही बातें आप करके तजाद पैदा करना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सच्चाई ला रहा हूँ आपके सामने। आप उस पर पर्दा डाल रहे हैं, आप उससे समझ आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। No, Mohammed bin Qasim was an invader and a plunderer. He was a plunderer. मोहम्मद बिन कासिम का बैकग्राउंड क्या था? Nobody is denying. No, nobody. They came with the intention of looting India. Mohammed bin Qasim. Of course. Number 2. Mahmud Ghaznovi? Of course. Then why are you saying This is wrong. this is wrong? You are not saying that this is wrong. You are saying I am wrong. No. What is it? What is it? अपने बाप को किया, भाई को किया। अपने बाप की बात कर रहे हैं। आप बताइए, हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं। आप इस्लाम से नहीं जोड़ सकते। फैमिली मेंबर्स आराम से पाकिस्तान में, मेरी बात सुने, पाकिस्तान में लोग हिंदुस्तान जब जान लेगा आपके बारे में तो यकीन हिंदुस्तान भी आपको इसी तरीके से भगा देगा जैसे सलमान रश्दी को भगाया था। उसी तरह तस्लीमा नसरीन को भगा देगा, जिस तरीके उसको भगाया था आपको भी भगाया जाएगा, क्योंकि आपने पूरे हिंदुस्तान में फितना फैला के रखा है। मैं हुकूमत भगाया, आप रसूलुल्लाह के खिलाफ बात करेंगे, आप उमर फारूक आजम के खिलाफ बात करेंगे, दोनों झूठ बोले। ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मैं बिल्कुल
بالکل लेकर के आऊंगा, बिल्कुल मैं लेकर के आया हूँ, बिल्कुल चलाऊंगा। जब आप रसूलुल्लाह के खिलाफ बातें करते हैं, आप हजरत उमर के बारे में अभी आप हजरत उमर के बारे में कहा कि वहां पर लड़ाई करने के लिए गए। पूछा आपसे क्यों गए फौज लेके? आप किस दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? क्या साबित क्या करना चाहते हैं? दिखाई ना, दुनिया ने नक्शा देख लिया आपका, ये जो निकाला दिखाई, दुनिया ने आपका नक्शा देख लिया है, दुनिया जानने लगी है कि आपके अंदर में कितना फितन मौजूद है। उस फितने को आपने हिंदुस्तान में बपा करना, बिल्कुल दिखाऊंगा, अभी शवाहिदात के साथ हम दिखाऊंगा। रोक देते हैं अभी, आप नहीं, झूठ की बात ना, कैसे झूठ? तो कुछ है ही नहीं। अभी भी कहा था तुम के बारे में, अरे आपने हमलावर कह दिया, खलीफे क्या है, खलीफे सोम को आपने अभी अभी हमलावर कह दिया। सबका तो आपने कत्ल किया, मैंने कत्ल किया, और किसने किया? हजरत उमर को आप हमलावर कहेंगे? अरे हम आपको बर्दाश्त करेंगे? कौम मुस्लिम आपको बर्दाश्त करेगी? अरे हमारे ने कहें आप क्या करेंगे? दुनिया देख लेगी थोड़े टाइम के बाद। क्या बताइए? वही होगा जो सलमान रश्दी के साथ हुआ, वही आपके साथ होगा जो तस्लीमा नसरीन के साथ हुआ। आप उनके एजेंट बन करके हिंदुस्तान के लोगों में डाल रहे हैं। मैं सीना खोल के ताल ठोक के बात करता हूँ, और मैं क्या ऐसी बात कर रहा हूँ? अरे अभी तो ये मौजूद है, अभी आपकी जबान से जाहिर हो गया कि आपने हजरत उमर को हमलावर का। अरे आपको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है जब हजरत उमर के बारे में हमलावर की बात करेंगे? फतवा लगाए ना, फतवा बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, अभी यकीनन लगाएंगे, लगाइए, और ऑनलाइन लगाएंगे। जो रसूलुल्लाह के खलीफा को बताइए, लगाइए फतवा, बिल्कुल लगाएंगे। अरे अभी है, हिम्मत है, बिल्कुल ऑन पेपर देंगे ना। अरे अभी पेपर देंगे ना, अरे भाई टीवी है, इसमें लगाए पेपर के साथ देंगे। फतवा ऐसे नहीं दिया जाता, यही है डरपोक आदमी, फतवा के उसूल जाते हैं, फतवा बोल के नहीं दिया जाता। बंद, कभी आवाज बंद नहीं हुई, आवाज कभी बंद नहीं होगी, कभी आवाज बंद नहीं होगी। हजरत उमर पर हमलावर करने वाला, हजरत उमर का हमलावर करने वाला, हिंदुस्तान के लोग जूते मार के भगाएंगे ऐसे लोगों को। हिंदुस्तान के लोग, बात याद रखें। हाँ, क्या होगा? ऐसे लोगों को जो हजरत उमर के ऊपर में फतवा लगाएंगे, उसको हमलावर कहेंगे। क्या करेंगे आप? जूते मार के भगाएंगे हिंदुस्तान से। हाँ, फिजिकल मतलब असॉल्ट करेंगे, जूते मार के भगाएंगे। मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान जूते मार के भगाएगा ऐसे लोगों को, जो पूरा हिंदुस्तान और यहाँ का हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर भगाएगा। ये सिर्फ क्योंकि ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब चलती है, और क्या हिंदुस्तान और मुसलमान, हिंदू और भाई और मुसलमान भाई मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पर आपने पहना है, बिल्कुल पहना है, उतारिए, बिल्कुल। जो हजरत उमर पर हमले आवर की बात कहेगा, उसके जूते मार के हिंदुस्तान भगाएगी, हुकूमत से भी मुतालबा करेंगे, और आपको बाज़ाब्ता तौर पे वार्न भी कर रहे हैं। इस तरीके की बात है, आप उतारिए जूते, आप अच्छा हम लोग जो है ना, थोड़ा सा आप उतारिए जूता, इस तरह से आप में दम नहीं है, ये बढ़ती है के दायरे में। ये सऊदी कपड़े पहन के आए हैं, सऊदी कपड़े, ये सऊदी कपड़े पहन के आए हैं, मुझे पता है। और क्या है? इंग्लिस्तानी कपड़े पहन के कंफ्यूज है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ग़ज़वा हिंद बता दीजिए क्या है? नहीं, देखिए आप यहाँ ग़ज़वा हिंद क्या है? देखिए आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं। आप बताइए ना, टॉपिक से हट रहे हैं। अच्छा, मैं कंफ्यूज, टॉपिक से हट रहे हैं। आप क्लियर, आप जब हाजिर बताइए ग़ज़वा हिंद क्या है, आप बताइए ग़ज़वा हिंद क्या? देखिए, फिर आप टॉपिक से हट जाएंगे। अरे इसके लिए आप दूसरा टॉपिक, फिर दूसरा प्रोग्राम रखिए। अरे बताइए ना, ग़ज़वा हिंद क्या है? डिबेट कर जाते हैं आप हमेशा। आप बता दीजिए ग़ज़वा हिंद क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ग़ज़वा हिंद पे बता दीजिए। आप यू कांट अटर अ वर्ड, आप एक वर्ड नहीं कह सकते ग़ज़वा हिंद पे। आप बता दीजिए, आपके व्यूअर सुन रहे हैं, बताइए। आप बताइए ना, आप तो मास्टर लोग हैं। नहीं, आप फतवा लगाते हैं ना। आपने एक नया टॉपिक छेड़ा है, आप ही उसको बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। जंग की बात हो रही है, बताइए। मैं हज़रत उमर की बात लाए नहीं, जंग की बात लेके आए, तो हम बताएंगे आप लेके आए। व्यूअर ने सुना है और सुन रहे हैं। अगर इस्लाम तलवार की जोर पे फैला होता, फतेह साहब, दुनिया की तारीख गवाह है, हटाएंगे तो हम अगर इस्लाम तलवार की जोर पे फैला होता तो आज की तारीख में पूरी दुनिया में दूसरा कोई मजहब का मानने वाला ना होता। तैमूर ने क्या किया था? तैमूर की बात देखिए, फिर आप फिर डिबेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो हुकूमत करके गए, आप कह रहे हुकूमत करके गए, they were the emperors who used to annex kingdom for looting and plundering. उर्दू है या हिंदी? Not the representative. अरे भैया, तो कौन था representative? तैमूर was not the representative. मोहम्मद बिन कासिम? Mohammed bin no. The representative of Islam was Paigambar Muhammad. आप उर्दू में क्या any of the books you will bring and you will try to say that entire Muslim community believes in this is wrong. No.